A very good evening to one and all present here. Wishing you a lovely Thursday evening. Welcome to Gurushala's Spotlight session for the month of February, which is on the theme Integrating Science in Everyday Life. So, before we begin, let us speak about Gurushala. Gurushala is an initiative of Vodafone India and Indus Towers Limited, and it is implemented by Pratham Education Foundation. So, before we begin, just would like to remind everybody that if you have any questions, ideas, or any answers, you can comment them in the section below you in either English or Hindi. And all the viewers and the participants will be receiving a certificate of participation. At the end of today's session, a form will be shared with everybody. And once you submit the form, you will be receiving the certification within 24 hours. So, before we begin, let us first congratulate and wish everybody a very happy National Science Day. Science Day is usually celebrated on the February 28th of every year, and it is done to mark the discovery of Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman. And for his discovery, he was also awarded the Nobel Prize, as you all are aware of. Moving forward, let us welcome our speakers for today. Good evening, teachers. Good evening, ma'am. Good evening. So I welcome you all. Very hearty welcome from Gurushala to all of you. Wishing you all a very happy Science Day. We're so honored to have you on board with us to talk to us about science and how we can integrate it in our daily lives. So, sir, this platform is arranged in a way where we have certain questions that we can ask and discuss. And आप सब अपने thoughts और opinions को हमारे साथ share कर सकते हैं. बहुत सारे viewers शोपियान के हमें YouTube पे देख रहे हैं live. तो ये सारा discussion जो है live है और हम सब इस तरीके से एक दूसरे से बात कर पाएंगे और अपने opinions को share कर पाएंगे. इसका idea वही है. So, moving forward. Have you ever wondered how we manage to stay cool in the face of air conditioning, fans and coolers? तो एक बात जो हम नोट कर सकते हैं वो है humans और उनकी curiosity. Curiosity के बिना humans कुछ भी नहीं होते हैं. It is because we think we make things happen, right? So, however, to study these qualities of certain species and object, it was a major concern for all humans. इसीलिए साइंटिस्ट ने इस ग्रुप ऑफ स्टडी को काफी सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट किया है. साइंस सिर्फ साइंस के बारे में नहीं, साइंस फिजिक्स के बारे में है, बायोलॉजी के बारे में है, केमिस्ट्री के बारे में है और मैथमेटिक्स के बारे में है. इन सारे चीजों से साइंस बनता है जिसे हमें एवरीडे लाइफ में यूज करना पड़ता है. सो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमें ये टूल्स मिलते हैं जिससे हम इन्फॉर्म डिसीजंस बना पाए अपने हेल्थ के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए और अपने टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे हमारी जीवन पूरी बनती है. So, moreover, it also fosters curiosity, like I mentioned, leading to a lifelong pursuit of knowledge. Overall, science into our daily routine enriches our life and contributes to a more informed and empowered society. और society के leaders, teachers होते हैं आप जैसे. तो आज start करते हैं पहले question से. ये question हम सब एक one by one answer कर सकते हैं. तो पहला question ये है कि how can we effectively integrate scientific concepts into everyday activities to enhance students' understanding and appreciation of science? जी सर. नईम सर, क्या आप बताना चाहेंगे? Ma'am, actually, it's a very vast topic. Yes, sir. Yes. इसमें हम अगर हमें साइंस के बारे में एफिशिएंटली लर्न करना है तो हमें इंटीग्रेट डिफरेंट वेज में करना है. उसका मतलब क्या है बेटा मैम के हमें अपने इस लर्निंग एटमॉस्फेयर को क्रिएटिविटी उसमें बड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी बाय फॉस्टरिंग डिफरेंट साइंटिफिक थॉट्स. अनलेस एंड अनटिल साइंटिफिक थॉट्स को इंटीग्रेट एफिशिएंटली नहीं करेंगे अपने इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तब हम ये साइंटिफिक कंसेप्ट्स को अच्छे से लर्न कर पाएंगे. तो हमें क्या करना है उसके लिए
हमें ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, ये जो हमारा क्लासरूम होता है, वी हैव ये यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड होता है। यूजुअली हम जो बात करेंगे तो हमें उसको बाहर निकालना है, और उसको हम दूसरा एक कंसेप्ट है क्यूरियोसिटी, जो साइंस के बारे में है, वो हमें उसमें ज्यादा लानी है। कि जैसे हम एक कंसेप्ट आता है कि अगर हम नेचुरल गैस को देखें, जी नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं, यूजुअली ये हमें ये बर्न ब्लू हो जाता है, इट्स कलर इज। ब्लू तक हम इसमें ये क्वेश्चन नहीं अराइज करेंगे कि व्हाई डज नेचुरल गैस बर्न ब्लू, ये क्वेश्चन हमें करना है, तब तक हम साइंस को इंटीग्रेट डिफरेंट कंसेप्ट्स में नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, डेली एक्टिविटीज में हमें भी इस साइंस को इंटीग्रेट करना है, रादर इनकॉर्पोरेट करना है। और हमें इस क्लासरूम को क्या चाहिए कि इसमें हमें अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस करने हैं, और और बड़ा एंथुजियास्टिक रहना है। और हमें क्या करना है कि एक एक कंसेप्ट आता है दैट्स कॉल्ड एज टाइम टू कंसिडर एंड रिफ्लेक्ट। राइट टाइम टू कंसिडर एंड रिफ्लेक्ट, कंसिडर क्या होता है कि बच्चे को आपको अच्छे से उसकी कंसिडरेशन देनी है, फिर उसके जो साइंटिफिक थॉट्स होते हैं, चलो अगर छोटे भी होंगे लेकिन हमें कोशिश करना है कि रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगा। तो मैम, इट वाज पर्सनल ओपिनियन, एंड इस दूसरा कोई पैनलिस्ट भी देख सके क्या कहेंगे। जी सर, आप जाना चाहेंगे? मुदासिर अहमद सर। बिल्कुल मैम। जी सर। मैम, अगर हम ये इंटीग्रेटिंग साइंस इन डे टू डे लाइफ, हम कैसे ये अगर हम क्लासरूम सिचुएशन में होंगे तो हम स्टूडेंट्स को कैसे हम साइंटिफिक एटीट्यूड डालेंगे, तो हमें उनके उनके साथ उनके जो ये हम उनको ऐसे बताएंगे कि हम उनको एक्टिविटी दिखाएंगे। एक्टिविटी जी मेथड से हम उनको वो एक्टिविटी मेथड से बहुत समझेंगे कि वो अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम उनको वाटर दिखाएंगे तो उनको इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है, अगर हम उसको कोई इंडिकेटर डालेंगे तो इसमें ये कलर चेंजिंग कैसे हो जाती है, या और कोई कंसेप्ट, या ये अगर उनको हम ये कोई मटेरियल ये कंडक्टिंग है या कंडक्टिंग का ये गुड काइंड ऑफ हीट है या नहीं है, तो हम उनको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। जितना हम उनको प्रैक्टिकल दिखाएंगे वो बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, और वो इसे वो साइंटिफिक जो एटीट्यूड है वो उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड जो उनमें होगा वो बाहर आएगा। उनको वो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे इनोवेशन को। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सो सर, हसन सर, क्या आप बताना चाहेंगे अपने ओपिनियंस और थॉट्स को? जी जी मैम। जी सर। सर, आपका अगर हम्म, कैमरा ऑन हो जाता तो हम आपको देख पाते। जी 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 मैम। जी जी हाँ, सर। क्लासरूम सिचुएशन में हम अगर बच्चे को बिल्कुल घर का माहौल देंगे, घर से ही जो हम स्टार्ट करेंगे उसको, कि घर में उसकी बहुत सारी साइंस की एप्लीकेंसेस होती हैं। बिल्कुल अगर हम उन्हीं के बारे में उसको बता देंगे, तो वहां से जी शुरू करेंगे। छोटे छोटे चीजों से अगर हम शुरू करेंगे, उसका जो माहौल साइंस का हो जाएगा, क्यूरियोसिटी उसकी जो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो जी सर। सो जी जी इस क्वेश्चन से हमें दूसरा ये एक सुनने को मिला है। जी हम इसमें एक दूसरा चीज भी आती है कि अगर जी हमें इफेक्टिवली इंटीग्रेट साइंटिफिक कंसेप्ट करने हैं तो हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हैंड्स ओके ऑन मीन्स के जब तक कि एक बच्चा एक लैब में ना चला जाए, तो वहां पे वो अच्छे से लर्न ना कर पाए, कंसेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा वो सीख ले, तो बिल्कुल तब तक ये चीजें हम नहीं सीख सकते हैं। और हमने क्या देखा है कि हम यूजुअली थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज पे हम कंसेप्ट को फोकस कम करते हैं। जब तक कि प्रैक्टिकल हमारा नो हाउ इंक्रीज ना हो जाए, ये हमें प्रैक्टिकल लैब, हम कहेंगे लैब कल्चर, तो तब तक हम एफिशिएंटली इंटीग्रेट साइंटिफिक कंसेप्ट्स को नहीं कर सकते। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट actually we have to appreciate the hands-on training. We have to impart hands-on training to our children, young children, from an early age.
And unless and until we don't do that, theoretical knowledge will not suffice. जी, वेरी ट्रू सर. सो फार हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, क्रिएटिंग क्रिएटिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन, कि एक माहौल बनाना पड़ता है जिसमें वो क्रिएटिवली सीख सके, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को यूज कर सके, उन्हें कॉन्सेप्ट दिखाया जाए, उन्हें समझाया जाए, तभी इन तीनों चीजों को मिलाकर अंडरस्टैंडिंग पूरी बनती है, तभी वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को अपने डेली एक्टिविटीज से इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो एनी अदर थॉट्स टीचर्स? ओके, सो लेट्स मूव ऑन. जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम साइंस को इंटीग्रेट करने में कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले स्टार्ट करने के टाइम पे बताया था कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी है. इसमें मैथमेटिक्स होती है, इसमें फिजिक्स होता है, इसमें केमिस्ट्री होता है, इसमें बायोलॉजी होता है. तो कैसे हम इन सारे सब्जेक्ट्स को, इन सारे अप्रोचेस को मिला सकते हैं साइंस को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाने के लिए? मैम एक्चुअली ये जो इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट और अप्रोच आज इट हैज कम लॉन्ग अगो, लॉन्ग पहले से ही है ये. इससे क्या हो जाता है हमारे स्टूडेंट्स में, ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सेंस ऑफ साइंटिफिक इश्यूज और इंटीग्रेट करने में. और द प्रॉब्लम इज दैट आर प्रेजेंट इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट. वेरी ट्रू. इंटरडिसिप्लिनरी, सपोज दूसरा एक चीज आता है, इसमें स्किल भी आता है. सपोज चलो बच्चे के पास अच्छी से नॉलेज है पर उसके पास स्किल नहीं है. सो व्हेन ही इज हैविंग a particular knowledge and simultaneously is having a particular skill, a good skill, it means there is interdisciplinary approach here. साइंटिफिक कंसेप्ट को वो स्किल के साथ जोड़ता है. तो हम ये कह सकते हैं जो एफिशिएंसी हमारे एनवायरनमेंट में, रादर आउटपुट जो आता है, दैट्स वेरी गुड. बिल्कुल. कोई और बताना चाहेगा? मुहाजिद सर? ताहिर सर, वेलकम. वेलकम मैम. जी सर, हमारा क्वेश्चन आज अभी के लिए ये था कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं साइंस को इंटीग्रेट करने के लिए डेली लाइफ में. जैसे कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स होता है. और नईम सर हमें अभी बता रहे थे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करने से बच्चे जो होते हैं अपने कॉन्सेप्ट को स्किल के साथ मिलाकर कंप्लीटली उसको समझ सकते हैं. तो आपका कोई ओपिनियन होगा सर इसके ऊपर? जी, ये इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस. यस. ये क्वेश्चन आपका ये था, इन व्हाट वेज वी कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई साइंटिफिक थिंकिंग. नहीं, ये शायद क्वेश्चन नंबर 3 है. Yes sir, this question is about how interdisciplinary approach can help integrate science into daily life. मैम इट्स एक्चुअली वेरी वास्ट क्वेश्चन. रादर आई कैन से दैट आजकल के दौर में इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट ही चलता है. बिल्कुल. व्हाट आई मीन टू से, सपोज एक बायोलॉजी एक अच्छा सा डॉक्टर है, जब चलो उसके पास तो बायोलॉजी का कंसेप्ट होगा, लेकिन अगर फिजिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट उसके पास ना हुए, सपोज अगर कोई बच्चा एमबीबीएस करता है, वो डॉक्टर है. एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर तभी है जब उसको मशीनरी अच्छी सी या उसको वो यूज करनी आएगी. सपोज स्टेथोस्कोप उसके पास है, वो तो बायोलॉजी एंड दैट्स फिजिक्स और आई कैन से सम इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट है. या बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री में आपस में आ जाता है. या ईवीएस में दूसरा एक क्या बोलते हैं हम मैम, ये इंटरडिसिप्लिनरी वास्ट मेजॉरिटी आता है उसमें. और इसी की वजह से आई कैन से देयर आर मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स अवेलेबल. और उसमें क्या होता है कि ये डे टू डे लाइफ जो हमारी है, उससे उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी जो आई कैन से इंफॉर्मेटिव बनता है और हेल्पफुल बनता है सोसाइटी के लिए. We cannot stick to only one subject. Absolutely. Unless and until we don't have this interdisciplinary approach, and I can say multifaceted. जैसे बहुत से डायमेंशंस हैं, एक ही डायमेंशन उसमें नहीं आता है. तो इट्स वेरी वास्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड गो फॉर इट. एंड वी शुड रादर
जिस जी रादर हमें अपने बच्चों में भी ये चीजें डेवलप करनी है, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है। बिल्कुल अगर उसको साइंस पढ़ाते हैं, साइंस में उसको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी कुछ उसको बताना है। अगर वो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा साइंस का भी उसमें वो कुछ बताना है। रादर हमें उसमें वो नर्चर करना है वो हैबिट, इंटरडिसिप्लिनरी इंफॉर्मेशन हासिल करने की। तभी वो जब वो सोसाइटी में आएगा, तभी जब वो एक फील्ड में आएगा, एंड ही कैन बी कैपेबल चाइल्ड। और वेरी वो जो बच्चे पे जो सोसाइटी आउटपुट उसमें मिलेगा, दैट्स बी वेरी गुड। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। सर, आपका जो एग्जाम्पल था मेडिसिन यूज करने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेडिसिन फील्ड इज ट्रूली अ फील्ड वेयर आई थिंक ऑल द सब्जेक्ट्स आर यूटिलाइज्ड, यू नो। केमिस्ट्री इज यूटिलाइज्ड इन अंडरस्टैंडिंग मेडिसिन। जब हम मेडिकेशन बनाते हैं तो उसमें केमिस्ट्री की यूसेज होती है, बॉडी पार्ट्स में बायोलॉजी की यूसेज होती है, और जो टूल्स हम यूज करते हैं, मशीन्स हम डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो उनमें इलेक्ट्रिक और बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। सो दैट्स अ वेरी यूजफुल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। थैंक यू सर। हसन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी मैम। जी सर। जब तक हम एक बच्चे में डिफरेंट स्किल्स पैदा नहीं करें, डिफरेंट स्किल्स मीन्स जब तक हम उसको ये समझाएं कि मैथमेटिक्स और जो ये साइंस है, या ये बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इनमें क्या रिलेशन है आपस में, तब तक वो ये नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल। यस सर। मोहम्मद ताहिर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ओके, जैसे नईम सर ने कहा है, जी आई थिंक सफिशिएंट। और दूसरी इतना मैं ऐड कर चाहता हूँ कि जो ये साइंस है, जी एक्चुअली साइंस इट इज वे ऑफ थिंकिंग जी। which is which is unbiased and based on empirical knowledge. तो वेरी ट्रू। उसमें साइंस it does not include only the physics, chemistry, I mean basic sciences, but I think science is approach and it includes other branches of knowledge like history, politics, sociology as well. When we वेरी ट्रू। integrate all these disciplines, that play a positive role in day-to-day life. I think वेरी so. ट्रू सर। यस। Anybody else, teachers, who would like to share their views on this? How many Yes, sir. participants we are, ma'am? Please. We How have many about participants we are? I we think have we are. 5 participants. You have restricted to five. Your program to 5 teachers only. Yes, this concept is around a few teachers. Yes, focus group discussion. Yes, yes. Okay. So let's move on. The next Yeah. question that How we do can we? see: how do we address Can I read out that misconception? question, ma'am? Please. May I interpret Yes, you, sir. please, ma'am? I want to read Sure, out sir. that question. Oh, Sir. please, sir. Go ahead, How sir. do we? Please. How do we address misconceptions or stereotypes about science that may hinder students' engagement with the subjects outside the classroom? This is question number. Sorry, third. Yes, Is it yes, so? yes, sir. Yes, sir. But I think the question is not valid. Not valid. It is not Okay, valid sir. because Oh, why may I there think so? shouldn't Could you please share? there shouldn't be any ma'am, there shouldn't be any misconcept or stereotype in science. Science is the knowledge based on empirical facts. When we Very true. incorporate misconcepts or stereotypes in science, then how it is science? Agreed. That's a good I think point of view, sir. Yes. Okay, science sir. is not based on misconcepts, myths, or rituals. It is empirical knowledge. Very true. Very true. So, sir's point of view is that there cannot be any misconceptions in science There since it's cannot be any empirical knowledge. misconcept or Yes. stereotype in science. Understood. Understood. Okay, sir. Anybody else who has any thoughts on this? We can elaborate on elaborate on this concept is that actually, Yes. no doubt, sir has correctly said that actually science is true knowledge. Science is practical knowledge. It's all true. But It's evidence science based. is true. Yes. Yeah, it is true.
But when we go at an early stage, when we talk about a student, he may have some misconceptions about science, and so I can say a stereotype has been developed in the mind of a child that maybe about a certain concept, certain topic. So what's the role of a teacher here? First of all, if there is any misconception or stereotype that's developed in a student's mind, we have to, first of all, we have to identify that, because a teacher, and, of course, he should be knowing the facts. His Absolutely. content knowledge would be correct and up to date. Rather, I can say that he must have solid approach and solid knowledge about that concept. But if he sees that uh, the concept of uh, a child or a student, that is somehow, I can say, that's not true. So first of all, he has to identify that misconception, and after that, what he has to provide a form first to he has to provide a platform to the student to, I can say that, so that this misconception is evaded I can say, this misconception is somehow removed from his mind. So Agree. if I can say that, and we have to help the student to and uh, reconstruct and correct this knowledge, so that actually science is truth based. It is scientific. It is scientifically proven that. So we have to remove that misconception if we see that somehow the concept of the child is incorrect. Absolutely, sir. Absolutely agree with your point, sir, that if there are any misconceptions, we should rationally talk to the student and sort it out, because those may form any future hindrances in learning Now, abilities. First, So I now, first of all, we have to, ma'am, identify that. After that, we true have to remove it. identify. Use the different form, whatever we can use. Very true. Identifying it is very important. Yes. Yeah, identifying it, Riyaz, removing the sir. different. Sorry, sir. So you were saying something? Naeem, sir, you were saying something in the end? No, ma'am, no, ma'am. Actually, I Okay. completed my talk. Okay. Riyaz, sir, would you like to say anything on this topic? Okay. मुदासिर सर, एनी थॉट्स, आपके कोई थॉट्स या ओपिनियंस हो इस क्वेश्चन पर? No, ma'am. Okay, sir. So, shall we move on to the next question, teachers? Okay. Okay. So, the next question says, in what ways can we encourage students to apply their scientific thinking and problem-solving skills in everyday decision making? हम कैसे स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वो जो सीखते हैं क्लासरूम्स में वो अपने डेली डिसीजन मेकिंग स्किल्स में अप्लाई करें? जी मैम, दिस कैन बी आल्सो उसमें फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टीचर आल्सो सर। आप कैसे कुछ चीजों को अप्लाई करते होंगे, हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं ताकि सबको एक वेल राउंडेड डिस्कशन की तरह ये लगे। तो एनीबॉडी हु वुड लाइक टू शेयर? यस, ओके मैम। यस सर। अगर हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स देंगे, जी, प्रोजेक्ट्स के जरिए वो अपनी साइंटिफिक नॉलेज थिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इस तरह से उसका एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में आ जाएगा। बिल्कुल। जी, तो उस तरह से उनकी जो साइंटिफिक नॉलेज का एप्लीकेशन भी आ जाएगा और उनके अंदर स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगे। बिल्कुल। हसन सर, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैम, इसमें एक जी सर, जी जी, कैरी ऑन। यस नईम सर, प्लीज कैरी ऑन। मैम, अगर हमें बच्चे के स्टूडेंट जो भी है उसको एनकरेज करना है ताकि उसको साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एनकरेज एक्टिव लर्निंग। यस, जब बच्चा एक्टिवली लर्न नहीं कर पाएगा, ही कैन डू दिस। वेरी ट्रू। दूसरी एक बात है कि मैम, उसको
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज जो भी हैं, he has to also face that. Right. एंड मैम, इसमें जैसे एक सर ने अच्छा कहा था कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लर्निंग, जब एक बच्चे को अच्छे से हम प्रोजेक्ट कोई किसी में इसी की लेवल का, उसी की मेंटल स्टैंडर्ड का एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट देते हैं, जी. जब उसको उस पे वो काम करता है, ऑफ कोर्स वी हैव टू असिस्ट हिम, वी हैव टू हेल्प अ चाइल्ड हियर. Right. एक प्रोजेक्ट 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 जो प्रोजेक्ट वर्क में है, उसमें बड़ा उसको हम एनकरेज कर सकते हैं. जी. साइंटिफिक नॉलेज और स्किल, वो दोनों को आपस में डील करने में. So first of all, I can say that first of all we have to encourage active learning. उसमें बच्चे में दूसरी चीज कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज को उसको दिखना है. और इम्पोर्टेंट चीज है इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड Right. एक्सप्लोरेशन. इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चे को हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग में भी लगाना है. जो प्रोजेक्ट है अच्छे से हमें उसको वो देना भी है कुछ, लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी इसमें इम्पोर्टेंट आता है. Right. And certain things that came in my mind. Very true, sir. So implementing it through active learning and providing assignments and projects, that is how we can encourage students to apply their scientific thinking. So that's a great method. Hassan sir, would you like to share something with us on this? जी मैम. जी sir. जैसे कि अभी ताहिर साहब बता रहे थे कि जब तक हम बच्चे को जब कोई प्रोजेक्ट देंगे क्लास में, और उसको थोड़ा सा आज़ादी भी हम देंगे, इसके साथ ही उसको स्ट्रेस नहीं करेंगे, नहीं भाई ये करना है वो करना है, उसको आज़ादी से हम छोड़ेंगे तो वो कुछ न कुछ तो देगा. उसका जो साइंटिफिक माइंड है वो डेवलप हो जाएगा. Okay. Any other teacher would like to share on this? Riyaz sir, would you like to share something? रियाज अहमद सर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन. मुदासिर सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस पर? नो मैम. सर आप भी शेयर कर सकते हैं, आप कैसे एनकरेज करते हैं अपने बच्चों को, जो आप सिखाते हैं क्लासरूम में उसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं बच्चे? मैडम, अगर हम कोई एक्टिविटी कराएंगे बच्चों से तो वो उससे बेटर अंडरस्टैंड करेंगे. वो कुछ प्रोजेक्ट देंगे, वो प्रोजेक्ट से और कोई एक्टिविटी अगर हम उनको देंगे एक्टिविटी करने के लिए, तो वो उसे एनकरेज भी होंगे और उनमें साइंटिफिक थिंकिंग भी डेवलप हो जाएंगी. बिल्कुल. सो ये कंसेंसस में है हमारे सारे टीचर्स के साथ कि प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स देने से और एक्टिव लर्निंग कराने से बच्चे हमेशा एनकरेज रहेंगे कि वो अपनी साइंटिफिक थिंकिंग और कॉन्सेप्ट्स को अपने डेली डिसीजन मेकिंग में उसको इनकॉर्पोरेट करें, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. बिकॉज हमारी जो टीचिंग होती है, एनकरेज ग्रुप वर्क में हम अगर करेंगे ना मैम, बच्चे को जब ग्रुप्स डिवाइड करेंगे और ग्रुप वर्क उसको देते हैं, एब्सोल्युटली, उसमें वो भी अच्छी बात है. ग्रुप वर्क से टीम वर्क भी बढ़ती है एंड अदर सोशल स्किल्स दैट एक बच्चे को जरूरत होती है लाइफ में, वो भी बढ़ती है. तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से एंड करेंगे कि जो हम क्लासरूम्स में सीखते हैं वो सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए. हमारे डेली लाइफ में उसको यूटिलाइज करने के लिए हम पढ़ाई लिखाई करते हैं. सो विच इज व्हाई आवर टीचर्स आर सजेस्टिंग that we incorporate more assignments and projects and encourage active learning to encourage students to integrate their scientific thinking into problem solving skills. So moving on to the next question, how can we foster a culture of curiosity and inquiry that extends beyond the classroom into a student's daily routine? कैसे हम क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी, पूछने की जो क्षमता होती है, पूछने की इच्छा होती है बच्चों में, उसको हम कैसे नर्चर कर सकते हैं कि वो क्लासरूम के बाहर भी चीजों को क्वेश्चन करे, चीजों को देखे, समझे और उसको क्वेश्चन करे और उसे समझे. जैसे कि अगर कोई बच्चा बाहर जाए गार्डन में
तो उसे ये क्वेश्चंस आए कि ये प्लांट में जो बायोलॉजी चलती है प्लांट की वो कैसे होती है, या फिर अगर वो स्काई को देख रहा है, टेम्परेचर को देख रहा है तो वो समझ रहा है। तो उस क्यूरियोसिटी और उस इंक्वायरी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और उसको बरकरार रख सकते हैं, ये है क्वेश्चन। सो टीचर्स, आपके कोई थॉट्स? हसन सर, मोहम्मद सर, नईम सर, आप एनीबडी कैन गो। मुदासिर सर, आप सर जरा बताइए ताहिर सर। हेलो, एक्चुअली यहाँ हाँ, हमारे ताहिर यहाँ सर बताइए। मैं मस्जिद के हमसायगी में पड़ोसी में हूँ, जी अजान हो रही है। इन ऑर्डर टू गिव रेस्पेक्ट टू द कॉलिंग ऑफ अजान, तो दूसरे सर कमेंट कर सकते हैं इस पर। जी जी, यस सर। अजान हो रही है एनीबडी शायद एल्स आप, सर? अजान Anybody खत्म else होती who है would मैं like to comment? क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए पहली जो चीज है मैम, दैट्स एनकरेज क्वेश्चंस। नो, Yes, encouraging questions. एनकरेज क्वेश्चंस, क्योंकि क्यूरियोसिटी ऑफन बिगिन करती है एक क्वेश्चन को व्हाई। बिल्कुल। तो पहला जो चीज है एनकरेज क्वेश्चंस। जैसे कि मैम हम ये कह सकते हैं कि व्हाई डज नेचुरल गैस बर्न ब्लू, जैसे पहले भी मैंने कहा था मैम। तो जब बच्चे को ये हम बताएंगे क्वेश्चंस के अप्रोच से, उसके, क्योंकि अगर हम लेसन प्लान भी प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो पहला मेथड आता है हम बोल रहे हैं कि आस्क क्वेश्चंस। अगर बच्चे को हम क्लास में जाते हैं तो पहले थोड़ा बहुत हम सवाल पूछते हैं, व्हाई, इट इज जस्ट टू डेवलप क्यूरियोसिटी। Increase the curiosity. Yes. हियर यहाँ पे भी अगर हमें एक कल्चर ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी हमें डेवलप करना, तो पहले हमें क्वेश्चंस, वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस। और दूसरी एक चीज है कि हमारे क्लासरूम में पहले मैम बताया था मैंने, एक एंथुसियास्टिक अप्रोच होना चाहिए। जब आप एंथुसियास्टिक अप्रोच मीन्स कि बच्चा क्लास में है लेकिन हमें फिर बच्चे को बाहर ले जाना है। क्लास के अंदर में ऐसी क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है कि बच्चे बिल्कुल क्यूरियस रहे कि मुझे जब बाहर जाके मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे नेचर लर्न करना है डेली रूटीन से हट के। सपोज हम ऐसे कर सकते हैं, बच्चे को हम यूजुअली हम पिकनिक पे ले जाते हैं, व्हाई, व्हाट्स दैट, कांसेप्ट क्या है उसका, ताकि वो नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करे। डिफरेंट कंसेप्ट्स, नेचुरल कंसेप्ट्स वो लर्न करता है। that may be regarding this botany, that may be regarding zoology or physical concepts or certain biochemical concepts। तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज आता है अनलेस एंड अनटिल हम पोस्टर हम उसमें ना ये क्यूरियोसिटी डेवलप जब तक हम ना करेंगे। सो टू डेवलप क्यूरियोसिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Right. So developing curiosity by taking them outside and questioning them, asking them a lot of questions and letting them question things. ये है आपका जो टेक्निक है कि हम कैसे क्यूरियोसिटी बढ़ाए रख सकते हैं बच्चों में साइंस के लिए। एनीबडी एल्स? हसन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन के लिए? जी 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 हम एक बच्चे को सीधा साधा सवाल, अगर हम उसको पार्क में ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, तो अगर हम उसको सीधा सवाल करेंगे, सीधा साधा सा सवाल है, अगर वो आसमान की तरफ देखेंगे तो वो आसमान नीला दिखता है। उसको अगर हम क्वेश्चन ये करेंगे कि आसमान नीला क्यों दिखता है, या वहाँ पर दरख्त है वो गोल गोल से क्यों उगते हैं, वो चौकोर या किसी दूसरी शक्ल में क्यों नहीं उगते, तो उसकी क्यूरियोसिटी उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। Right. Okay, sir. Anybody else? अशाक सर, आप कहना चाहेंगे कुछ इस क्वेश्चन के ऊपर? अशाक हुसैन सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी और पूछने की जो क्षमता है उसे कैसे क्लासरूम के बाहर ले जाया जा सके बच्चों के लिए। अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं इसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए हमें बच्चे को जो बाहर का एनवायरनमेंट है इसके मतलब
इसको हमें उसको ज्यादा मौका देना चाहिए ताकि वो बाहर जो चीजें हैं उसके इर्द गिर्द वो इनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करे और उसकी क्यूरियोसिटी उसमें ज्यादा बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आई थिंक हम कंसेंसस में चार हैं चीजें यहाँ पे। हैं मैम, चार चीजें यस हैं सर। जिस there are four things, rather four यस great things, जिसमें कि हम बच्चे की क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है फील्ड ट्रिप्स, फील्ड क्योंकि ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स एक एक्सलेंट वे है कि फॉर एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन टू सुपर क्यूरियोसिटी among them, फील्ड ट्रिप्स। दूसरा मैम इम्पोर्टेंट चीज में आता है स्पीकर। जब हम क्लासरूम स्पीकर्स, जो क्लासरूम में स्पीकर्स होते हैं, वो भी एक्ट करते हैं एज ग्रेट कैटलिस्ट्स फॉर बोथ क्यूरियोसिटी एंड डिस्कशन इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। और तीसरा आता है इसमें लाइब्रेरी। और चौथी चीज है मैम, जैसे हम क्रिएटिव गेम्स और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें भी बच्चे से, क्योंकि बच्चा बड़ा क्यूरियस होता है इसको learn करने के लिए जब हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, in addition to the things which we have already discussed. यस, वेरी ट्रू सर। तो आई थिंक हम कंसेंसस में हैं यहाँ सारे टीचर्स के साथ कि एक क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए और क्वेश्चंस पूछने की जो स्किल है उसे बढ़ाने के लिए हम फील्ड ट्रिप्स करें, हम एक्टिविटीज करवाएं, हम एक्सपेरिमेंट्स कराएं बच्चों से, जिससे बच्चों को क्वेश्चंस करने की वो इच्छा होगी। वो जब चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उन्हें अपने आप क्वेश्चंस आएंगी, वो समझेंगे बेटर। क्योंकि हमने काफी टाइम ये नोटिस किया होगा कि अगर एक चीज सिर्फ पढ़ा जाए तो शायद हमें 40 या 50% उसकी समझ आती है। जब उसको हम करते हैं, एक्चुअली अप्लाई करते हैं या फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, हमें उसकी 100% समझ आ जाती है। तो उस चीज से हम इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एवरीडे साइंस? तो सस्टेनेबिलिटी हम सब जानते हैं कि आजकल ये एक बहुत कीवर्ड चलता है दुनिया में कि सारी चीजें हम जो करते हैं लाइफ में वो सस्टेनेबल हो, वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। तो एज टीचर्स आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम कैसे सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली वेज को साइंस, एवरीडे साइंस में इन्वॉल्व कर सकें? ये काफी एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसके बारे में हम रोज सोचते नहीं हैं। ये एक एवरीडे लाइफ प्रोसीजर बनने में अभी भी टाइम है। तो बट इफ एनीबडी हैज थॉट्स, आई वुड लव टू हियर देम। यस टीचर्स, एनीबडी कैन गो। नाइम सर, यू हैव एनी थॉट्स? मैडम, ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट है। How we Yes, can sustainability and incorporate environmental friendliness. Yes. sustainability and environmental speed forwardship Yes. in everyday life. Am I correct, ma'am? Yes, sir. Yes. जी, जो मैं इसमें ये समझा है कि our objective is to attain the sustainability of environment. Yes. Sustainability, by sustainability we mean we have to use the environmental resources judiciously. Yes. जुडिशियस यूज जब हमारे रिसोर्सेज का होगा तो हमारा एनवायरनमेंट जो है उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी होगी और सस्टेनेबिलिटी और स्पीड फॉरवर्डशिप हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएगी। तो ये हमें तभी अचीव होगी व्हेन वी हैव ए इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स साइंस। जब तक हमें बायोलॉजी नहीं जानेंगे तब तक हम एनर्जी का जुडिशियस यूज नहीं कर सकते। Very true. और जब तक हमें ये जो एनर्जी का के कंसेप्ट से ये हमें फिजिकल साइंस से आएंगे। फिजिकल साइंस को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सस्टेनेबिलिटी को भी नहीं अचीव करेंगे। इसलिए आई थिंक इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर हमें डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस एंड डिसिप्लिन्स का होगा, दैट विल लीड अस टू दिस सस्टेनेबल एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एंड जुडिशियस यूज ऑफ पावर। Absolutely, sir. Excellent point, sir. Sir का point ये था कि judicious use of resources, that is the most important thing while we talk about sustainability and environmental stewardship. Anybody else, teachers, जिनका इसके ऊपर कोई opinion या thought हो?
respected sir has correctly said that. But I can elaborate on this concept is that Yes, first of please. all we have to make sure first we have to make this understand to a child what basically this sustainable development means. Sustainable development means that you have to use any resource, but you have to take care of the future generations as well. as well. Okay. Right. When when student is at an initial stage, हम ये कह सकते हैं वो ज्यादा फजूल चीजें उड़ा लेता है, खर्च कर लेता है, अगर वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं कि जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है। तो पहले हमें एक बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड कराना है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल स्टीवरशिप क्या है। उसके बाद मैम बहुत से कुछ आई कैन से देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन incorporate this sustainability and environmental stewardship. पहले समझना है क्योंकि environmental stewardship ये it's not a new term. In fact, it has got few roots in our country. अगर हम फार्मिंग से लेकर हंटिंग तक जाएं, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस से लेकर spiritual, तो हम लोग अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेज दे आर वेरी वैल्यूएबल and they provide very diversified environment or country. तो एक सोसाइटी को अगर ज्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो बच्चों को अच्छे से हमें इसका कंसेप्ट देना है। सो एज एन इंडिविजुअल, एज अ टीचर, एज स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर आवर रूल्स एज फैमिली मेंबर्स, एज कम्युनिटी मेंबर्स, और फिर हमें यही चीजें एक बच्चे को अच्छे से समझानी है। एंड क्लासरूम इज द बेस्ट स्टेशन, क्योंकि यूजुअली सारे बच्चे क्लासरूम में ही होते हैं। जब एक बच्चा छोटे से ही जब छोटा ही होगा उसके दिमाग में एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच आ जाएगा तो सस्टेनेबिलिटी उसमें डेफिनेट डेवलप हो जाएगी। सपोज और यूजुअली देयर आर 6 नेचुरल रिसोर्स सिस्टम्स। एक एयर है, दूसरा बेटा मैम ये है इकोसिस्टम्स है, एनर्जी है, लैंड है, मटेरियल्स है और वाटर है। इन 6 चीजों के बारे में इसको हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लाएं तो ये हमें बच्चे को एंड देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर डिफरेंट इट्स अ डाइवर्सिफाइड टॉपिक। छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता क्लास एक स्टैंडर्ड में, फिर दूसरे स्टैंडर्ड में, फिर तीसरे स्टैंडर्ड में आहिस्ता आहिस्ता करके सस्टेनेबिलिटी हमें एक बच्चे के दिमाग में अच्छे से बिठानी है। Only and only then we can rather integrate these two things. Very true, sir. Very true. आई थिंक एडिंग ऑन टू योर पॉइंट सर, हम ऐसे चीजें मतलब रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल तो हम टीचर्स पढ़ाते ही हैं बच्चों को, उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं और सस्टेनेबल मटेरियल्स को चूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स एंड सिंगल यूज मटेरियल्स। वी कैन यूज वुड एंड अदर मटेरियल्स। एनर्जी एफिशिएंसी को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्लासरूम्स में, वाटर कंजर्वेशन, और अगर साइंस की बात करें तो ग्रीन केमिस्ट्री प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो केमिस्ट्री लैब्स होते हैं उसमें जो एसिड्स एंड जो बेसिस हजार्डस सब्सटेंसेस यूज होती हैं वो हमेशा पानी में मिलकर वेस्टेज ही बनता है। सो कैसे हम ग्रीन केमिस्ट्री प्रैक्टिस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री सीखे बिना तो कोई रह नहीं सकता, बट उसके यूसेज को कैसे हम लिमिट और कंस्ट्रेन कर सकते हैं वो जरूर सिखा सकते हैं बच्चों को। तो एनीबडी एल्स, टीचर्स, हसन सर आप कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? नहीं, मैं भी जो सर ने कहा बिल्कुल सही कहा है। ओके, सो टीचर शैल वी मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन? हुसैन सर आपको कुछ कहना है इसके ऊपर? हशाक हुसैन सर?
जी, जो सर ने कहा वो लगभग मुझे लगता है ठीक है। तो इसके जी अलावा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो जब हम बात करते हैं तो इसमें एक हमें बच्चे को ये एक तरफ का इम्प्रेशन देना है कि एबिलिटी उसको एक बन जाती है कि मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन आवर प्लेनेट एंड एनवायरमेंट। तो जब वेरी ट्रू उसको बैलेंस का पता चल जाएगा तो वो अच्छी तरह से एनवायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेस है उनका जुडिशली यूज कर सकता है फिर वो। Very true, sir. Balance is the key to everything. Very true. So, moving on to हमारे last question के लिए of the day. What role can outdoor and experiential learning play in connecting students with natural world? ये आई थिंक काफी हमने कवर किया था उस क्वेश्चन में, जहाँ पे हम पूछ रहे थे कि क्यूरियोसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जहाँ पे Yes, हम yes. बाहर ले जाने की बात कर रहे थे बच्चों को. So if any teacher has any additional point in connection to this, in connection to experiential learning, कि कैसे उस एलिमेंट को हम बढ़ा सकते हैं टू कनेक्टिंग स्टूडेंट्स विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन देयर एनवायरनमेंट. एनीबडी हैज एनी थॉट्स? जी मैम, I think there is a positive role of it. The positive role यानी अगर हम ये आउटडोर और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है, it plays a positive role in connecting students with the natural and scientific principles in their day-to-day lives. So I think it is as important as the bookish knowledge is important. The outdoor and experimental learning is equally important for fostering the scientific temperament among the students and to understand natural and physical environment as Very well as true. the scientific principle. Very true, sir. Okay. So sir is saying that this is as equal, as important as bookish learning. So that is a very valid point. नेचर से कनेक्ट होना और बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करना कॉन्सेप्ट्स को सीखने से जस्ट एज इम्पोर्टेंट है, और उसे करना बहुत ज़रूरी है. एनी अदर पॉइंट्स टीचर्स? Any other points to this question? How can outdoor and experiential learning improve students' I, another thing I want to add is जो मैम ये जो experimental yes learning है, it develops skills among the learners जी as well. So skills Mhm. जो है to develop skills and how to handle the uh, equipment is one of the Mhm. objective of science learning and Right. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से एक चीज ये भी होती है कि हम जो स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं. Right. Okay. Naeem sir, any concluding thoughts from you on this I'm question? that this experiential this learning it provides an opportunity for learners to engage with the natural world and develop a connection to nature. And also by engaging with nature directly, learners can develop a sense of wonder and curiosity about the natural world. Yes. And after that, how to them to motivate them to learn more about environmental issues. So I can say that when a child goes outside, a connection is developed between nature and him, and Absolutely. he tries to understand, rather think about this nature and any degradation of any sort of that is water degradation, pollution, water, air, or some other degradation. Rather, we were talking about this sustainable development. I can say that he can somehow take a positive role in that. Mhm. This is possible. Very true. Okay. Any other thoughts, teachers, before we conclude our question answer round? So I think what we can conclude with is that a student, when coming to integrating science in everyday life, needs to incorporate a holistic approach, which means an interdisciplinary approach, not just in the classrooms, but also in the outer world, connecting with the nature. And we also talked about sustainability, and we also talked about how we can reduce our wastage and how we can incorporate environmentally friendly methods in the classroom.
So this was, the concluding round to our question answer session. I thank all the teachers here who have so wonderfully incorporated their experiences and their learning into today's discussion. Thank you so much, teachers. Thank you, ma'am. I'm very honored to have you on this panel today, and we hope that you keep inspiring students the same way for a long, long time. And I hope that they learn a lot. And so, before we end today's session, I would again like to thank everybody and also mention that the certificate participation will be given to all the participants. At the end, a Google form will be shared for attendance, and you can receive your participation certificates in 24 hours. It is in the comment section. And if you see here, right, it's called, there's a button called attendance form where you can get it. And please stay tuned for more. Every month we have such competitions, online training, spotlight sessions, skill up sessions that are beneficial for teachers and students. We would love to see your participation there as well. And in order to know more about us, you can download the Gurushala app, which is available on Play Store, and go through many free modules that are helpful for you as teachers to showcase to students. There are many modules on science, on any other subject that you may be teaching. So thank you all. Thank you one and all. And I hope to see your participation again very soon. Thank you so much. Thank you, teachers. Ma'am, one. Yes, sir. Hello? Please, sir. Yes. जी गूगल फॉर्म इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा Yes, sir. We will be sharing it with you. जी आप हमने इतने सिरे से